Okay, everyone's back? क्या सब लोग वापस आ गए हैं? Okay. So there's a question on the chat. तो चार्ट में एक प्रश्न है. The question is about this when Jesus, during Christ's death and resurrection, तो यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद um, the Bible tells us at that time बाइबल हमें बताती है कि Uh, उस समय में some of the graves were opened, तो कुछ जो कब्र होंगे वो खुल जाएंगे and some of the people who had died appeared to those in the city of Jerusalem. तो जो लोग मर गए होंगे, चुके होंगे, वे दिखाई देंगे यरूशलेम के लोगों को. Not everybody, some. सब लोग नहीं, कुछ लोग. So the question is, when we are talking about the rapture, we are saying when the Lord comes, He brings all those who are with Him. How do we explain what happened 2,000 years ago when Christ, during the death, burial, resurrection of Jesus? तो जो प्रश्न है कि कैसे समझाएंगे जब रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना होगा, जो 2000 साल बाद जो हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह के जेल जलाने, मरे जाने और पुनरुत्थान के बाद. So one way of understanding it is एक तरीका है इसको समझने के लिए कि that was a sign to the people that something powerful, supernatural was taking place. तो वह एक चिन्ह था लोगों के लिए कि कुछ सामर्थ्य या अलौकिक हो रहा है. Right? And it does not mean that the spirits of those people received glorified bodies at that time. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आत्मा उन लोगों का, उनको महिमामय शरीर मिला उस समय. Because Hebrews 11 says that the Old Testament saints will not be perfected apart from us. Or we can put it like this: the Old Testament saints and New Testament saints will be perfected together. तो जैसे इब्रानियों 11 में कहता है कि जो पुराने नियम के संत थे और जो नए नियम के संत थे, वे दोनों को एक साथ सिद्ध किया जाएगा. I'll give you the exact verse. This is Hebrews chapter 11. मुझे सटीक वचन देने दीजिए जो इब्रानियों 11 के verse 40. Hebrews 11 verse 40. 11 के 40 में लिखा है. So how we can explain what happened during the resurrection of Christ, during that time, the crucifixion, resurrection of Christ? तो हम कैसे समझा सकते हैं कि उस बातों को जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय हुआ था, Is a supernatural phenomena happens तो जब where- अलौकिक चीज होती है where a few of these graves were opened, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो कब्र हैं वो खुल जाते हैं, and God allowed certain people to see the spirits of और those who had died. परमेश्वर ने उन लोगों को अनुमति दी कि वे कुछ आत्मा को देखे जो मर गए थे लेकिन अभी जीवित हैं. But what we know did happen तो हम क्या जानते हैं जो हुआ था, when Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरे, his spirit and soul went down to hell, that is to Abraham's bosom, और जब वह मरे, यीशु मरे, तो उनका जो प्राण और आत्मा था वह नरक यानी अब्राहम के गोद में गया, where all the spirits of the Old Testament saints were being held. और जहां पर जितने भी पुराने नियम के संत थे उनकी आत्मा को रखा गया था. And when Jesus ascended into heaven, तो जब यीशु स्वर्ग पे उठाए गए he took paradise with him. तो उन्होंने पैराडाइज को अपने साथ लेके गए. This is in Ephesians chapter 4 verses 6 to 8. और यह इफिसियों के 4 अध्याय के 6 से 8 वचन में. That means all the spirits of all the Old Testament saints, he took with him. They ascended with him. तो इसका मतलब होता है कि जो पुराने नियम के जितने भी संत थे उनकी आत्मा को उनके साथ उठाया गया. The Bible says he took captivity captive. और वहां में जो गुलामी में थे उनको उठा के लेके गया. So that's the time when all the spirits of all the Old Testament saints were taken into heaven. तो वही समय था जो पुराने नियम के जितने भी संत थे उनको स्वर्ग में लेके गए When Jesus went up into heaven. जब यीशु स्वर्ग में चले गए थे. You understand? So now the spirits
of all the Old Testament saints are in heaven. तो अभी जो पुराने नियम के संत जितने हैं उनकी आत्मा अभी स्वर्ग में है, But they don't have glorified bodies yet. लेकिन उनका अभी शरीर महिमामय शरीर नहीं है। And when New Testament believers die today, their spirit also goes up to heaven, joins all of them in heaven. और जब एक विश्वासी मरता है तो उसके भी आत्मा जाकर स्वर्ग में उन लोगों के साथ जुड़ जाती है। Then at the time of the rapture, और फिर जाके रैप्चर या कलीसिया का उठाया जाने का समय आता है, when the trumpet sounds, जब तुरही का शब्द सुनाई देता the है Lord will descend. तो फिर परमेश्वर नीचे आते हैं। Then one more trumpet will sound. फिर एक तुरही और बजती है Every believer, और हर एक विश्वासी those who have died, जो मरे हैं they'll receive glorified bodies. वो उनको महिमामय शरीर मिलती है, And those who are alive, our bodies will be changed. और जो जीवित रहते हैं उनके शरीर बदल जाएंगे And we will be instantly, will be in the middle of the clouds, we'll meet Jesus और तुरंत उस बादलों के मध्य में हम मसीह से मिलेंगे and will be taken to heaven. और फिर हमको स्वर्ग में ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। You understand? आप समझ रहे हैं? Okay. And he will bring us into those mansions that he has been preparing for us. और फिर हमको उन महलों में लेके जाएगा जो हमारे लिए वो बना रहा है। So I have a question. तो मेरे पास एक प्रश्न है आपके लिए। What date and time the first trumpet will sound? तो पहला समय और तारीख है जब पहला तुरही बजेगा। कभी कब बजेगा वो? No, what time? When? Nobody knows. किस समय? कोई नहीं जानता है, Only God knows. सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। We don't know. हमको नहीं मालूम, Only God. सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। He will decide. वो निर्णय लेंगे The angel, ready, blow. और कहेंगे दूत तैयार हो जाओ, And the angel will blow the trumpet. और फिर तो दूत जाके तुरही को बजाएंगे The Lord will descend. और फिर परमेश्वर आएंगे And second angel, blow. और फिर दूसरा दूत बजाओ, Our bodies will be changed. हमारा शरीर है वो बदल जाएगा। आमीन। But when? Only God knows. लेकिन कब? So don't let somebody say, hey, kal 12 o'clock, tire raho. कोई कल कहेगा कि अरे कल 12 बजे 2:30 बजे ऐसा होगा, विश्वास मत कीजिए। We have to be ready all the time. तो हमको तैयार रहना है सब समय, हर घड़ी। Huh? He won't, that one he said, I won't tell anybody. तो वह जो बात है वो किसी को नहीं बताएगा। भाई कह रहे थे कि Even if one prophet says, God told me the time, he said, झूठ बोल रहा है. अगर कोई प्रभुशाली भक्त आके कहता है कि परमेश्वर ने वो समय मुझे बताया था, आप कहे झूठ बोल रहे। Because Jesus said, of that day and that hour, no man knows. क्योंकि यीशु ने कहा कि उस दिन उस घड़ी को कोई नहीं जानता, Only God. सिर्फ परमेश्वर जी। Again. ठीक है? So, let's go here. It's in 1 Thessalonians chapter 5, verses 1 to 11. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 1 से 11 तक। Paul says that they will come like a thief in the night. और वह रात में एक चोर आने वाला चोर के समान होगा। Okay, we are not going to read the whole passage. I'm just mentioning that point. हम पूरा जो अध्याय है उसको नहीं पढ़ेंगे, मैं कुछ विशेष मुख्य बातों को करूंगा। So, like a thief in the night. एक चोर की तरह जो रात में आता है। So, when the thief comes in the night, does he tell you, hello, next night, tomorrow morning, 3:35, I'm morning, when you're sleeping, I'm coming to your house. तो जब चोर आने वाला तो कहता है कि अरे देखो कल 3:30 बजे एकदम भोर को जब तुम सो रहे होगे मध्य रात्रि में मैं आकर चोरी करूंगा। Never says. कभी नहीं बोलता ऐसा, Just quietly he comes. वो चुपचाप आता है। So Paul is saying, the coming of the Lord is like that. तो पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर का आना भी ऐसा ही होगा। He won't announce. वह घोषणा नहीं करेगा। That's why we must all live always ready. तो इसलिए हम लोग को हमेशा हमेशा तैयार होके रहना है, वैसा जीना। Okay? ठीक है? So I already explained about the trumpet of God. और मैंने जो परमेश्वर की तुरही है
तुरही है, उसके बारे में पहले बता दिया आपको। Now, in the book of Revelation, अभी प्रकाशित वाक्य की किताब में we will read about 7 trumpets. और हम 7 तुरही के बारे में पढ़ेंगे। Okay, don't confuse those 7 trumpets with these 2 trumpets we heard about the rapture. और आप कृपया इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो 7 तुरही को हम जो सिखाएंगे जाने वाले हैं, और यह दूसरी 2 तुरही जो मसीह कलीसिया के उठाने वाले के तुरही के बारे में है। These are 2 separate things. तो ये दोनों अलग अलग चीज है। The 7 trumpets that we will read about in the book of Revelation are trumpets of judgment on the earth. तो जो 7 तुरही जो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 में, वह 7 तुरही उस न्याय के बारे में होगा जो पृथ्वी पर होगा। Okay, but these 2 trumpets that we read in connection with the rapture is for the church to be gathered together and meet the Lord. और ये जो 2 तुरही के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा या सीखा, वह जो कलीसिया उठाई जाएगी उसके बारे में बताया जाता है। Okay, these are different. ये अलग अलग बात है, ठीक है। So, what will believers do in heaven तो जो विश्वासी होंगे वह स्वर्ग में क्या करेंगे during those 7 years? उन 7 सालों में? We listed some things here. तो कुछ बातों की सूची हम लोगों ने बनाई है यहाँ पे। We will be with him. तो हम उसके साथ रहेंगे। We will see him as he is. वह जैसा है वैसा ही हम उसको देखेंगे। We will be living with glorified bodies. और हम महिमामय देह के साथ में रहेंगे। We will know as he knows us. हम उनको जानेंगे जैसा वो हमको जानते हैं। That means suddenly God is going to give us understanding of many things which we don't have understanding right now. तो अचानक से इसका मतलब होता है कि अचानक से परमेश्वर हमको उन सब बातों की समझ दे देंगे जिसकी समझ अभी हमें नहीं है। Now somebody asks, why did that believer die? तो अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि कैसे वो विश्वासी मरा, Why did this happen? वो कैसे हुआ, Why did that happen? वो कैसे हुआ, मुझको मालूम नहीं. आई डोंट नो। We don't have answers for everything. हमको सब चीज का उत्तर नहीं है हमारे पास। But when we are in heaven, लेकिन जब हम स्वर्ग में होंगे there will be no more questions. तो कोई प्रश्न ही नहीं होंगे। Somehow God is going to take care of all those questions. और किसी प्रकार से परमेश्वर सारे प्रश्नों का ध्यान रखने वाला है। There will be peace about all those matters. तो वो सारी बातों के लिए एक शांति होगी। We will know in a way that all our questions are answered. और हम सब जानेंगे उस प्रकार से कि सारे हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। Amen. आमीन। God will give us that knowledge. परमेश्वर हमको उस बातों का ज्ञान देगा। We will be welcomed into our mansions in heaven. और फिर हमारे जो महल है उनमें हमारा स्वागत किया जाएगा। Now, very important. बहुत जरूरी बात। During those 7 years in heaven, तो उन 7 सालों के दौरान स्वर्ग में believers will have their judgment. तो विश्वासियों का न्याय होगा। Okay. So as believers, तो विश्वासी के रूप में the moment we receive Jesus Christ, we have already passed judgment. तो जिस समय हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा न्याय हो चुका। So if you look at John chapter 5, तो जब आप देखेंगे यूहन्ना अध्याय 5 में, John 5, यूहन्ना 5 verse 44. उसका 44 वचन। Sorry. Yeah. 1 minute. I have to give you the correct verse. John. 1 minute. Let me give you the correct verse. John.
या 336 336 Okay. I am not getting the correct verse now, but one parallel verse is John 3:36. तो जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ वह यूहन्ना 3:36 का है, उससे हाँ। मिलता जुलता वचन है। John 3:36. यूहन्ना 3:36 Let's read it. John 3:36. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। Okay. So the verse that I'm trying to remember is Jesus says, he who believes in me, he has passed from death to life. He's already gone from death to life. तो मैं उस वचन की तलाश कर रहा था जहां पे यीशु कहते हैं कि जिसने मुझ पर भरोसा विश्वास किया है वह मृत्यु से विजय प्राप्त करके जय में आ गया है। John 5. 5:24 Oh, John 5:24. Let's look at that. John 5. That is correct. John जी। 5:24. Give good clap. and we clap। Okay. So let's read it. John 5:24. Somebody read it, please. कोई पढ़ेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। That means for the believer, your judgment is already over. तो देखिए विश्वासी के लिए जो न्याय है वो हो चुका है। Okay, and you already passed. आप उत्तीर्ण हो चुके हैं। You have passed from death to life. आप मृत्यु से जीवन में आप पास हो चुके हैं। So for the believer, judgment is already finished. You're clear. Pass. तो जो विश्वासी है उनके लिए जो न्याय है वह हो चुका है। John 5:24. यूहन्ना 5:24 You have passed from death to life. आप मृत्यु से लेकर जीवन में आप पास हो चुके हैं। But लेकिन after the rapture, कलीसिया उठाए जाने के बाद after we go into heaven, जब स्वर्ग में जाएंगे we will have a judgment. तो हमारा न्याय होगा। This judgment is not to decide whether you're coming into life. You've already come into life. तो यह जो न्याय होगा यह बताने के लिए नहीं कि आप जीवन में आ चुके हैं या नहीं। This judgment is for your reward. तो यह जो न्याय होगा आपका जो पुरस्कार होगा उसके लिए। How much should I give you? 1 crown, 2 crowns, 3 crowns, 10 crowns? तो कितना मुकुट आपको दे, पहला 1 मुकुट, 2 मुकुट, 3 मुकुट, 4 राज मुकुट, ऐसा। That is the judgment. तो वह न्याय होगा। You understand? So let us read some passages on that. तो आइए कुछ और वचनों को पढ़ेंगे उससे संबंधित। 2 Corinthians chapter 5. पहला कोरिन्थियों अध्याय 5। So this is about the believer's judgment. तो यह जो विश्वासी है उनके न्याय के बारे में है। Okay. So let's read this. पहला कोरिन्थियों अध्याय 5। 2 Corinthians chapter 5 verses 9 and 10. 9 और 10 वचन। इस कारण हमारे मन का उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उससे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। So verse 10. तो 10 वचन He's writing to believers. वह विश्वासियों को लिख रहा है। We must all stand before the judgment seat of Christ. तो मसीह के राज्य सिंहासन के जो न्याय के सिंहासन के सामने हम सबको खड़ा रहना है। But for what? लेकिन किस लिए? So that we can receive a reward for the work that we have done in our body. तो हम उसका पुरस्कार पा सके जो उस काम को जो हम लोगों ने शरीर में किए हैं। And 1 Corinthians chapter 3. पहला कोरिन्थियों अध्याय 3। Paul describes a little bit more. और पौलुस थोड़ा सा और इसको विस्तार में बताते हैं। We'll read verse 10
और हम 10वां वचन पढ़ते हैं, to 15. उसका 10 से 15 पढ़ते हैं। 1 Corinthians 3, 10 to 15. पहला कोरिन्थियों 3, उसका 10 से 15 वचन। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राज मिस्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखा है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो वह हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। So now Paul describes. तो अभी पौलुस व्याख्या कर रहे हैं। So Paul says, we all have only one foundation. तो वो कहता है कि हम सबका एक ही नींव है, It is Jesus. वह है यीशु। But be careful how you build on that foundation. तो यह जरूर आप ध्यान से रखें कि आप उस पर कैसे अपने आप को बनाते हैं। If you build with wood, hay, stubble, और फिर अगर आप उसको लकड़ी से या घास पुआल से बनाते हैं, those things will be burnt. तो वे सारी जो चीजें होती हैं वे जलाई जाएंगी, Foundation is still there. और वह जलाई जाएंगी, A foundation is still there, लेकिन जो नींव है वहां रहेगी। but all these things are burnt. तो ये सारी चीज हैं वे जल जाएंगी। That means you will be saved, आपको तो बचाया जाएगा, but no rewards. लेकिन आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। But if you build with gold, silver, and precious stones, लेकिन अगर आप सोने, चांदी या बहुमूल्य पत्थर से बनाएंगे, then your work will stand कि आपका जो काम है वो खड़ा रहेगा, and you will receive a reward. और फिर आपको एक पुरस्कार मिलेगा। So what is Paul trying to tell us? तो पौलुस यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करता है? He's using, these contrasting types of materials. तो आपको यह जो तो तत्व हैं जो विनाश होते हैं उसका मैं बता रहा है, Where he's contrasting what is of the world and what is of the flesh versus what is from God and of the spirit. और वह नाता रखता है उससे कि जो संसार में है, जो देह का है, और उससे जो स्वर्ग का है और परमेश्वर का है। Gold, silver, precious stones, meaning it's divine. It comes from God. It's from the Holy Spirit. तो सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या परमेश्वर से आता है, जो दिव्यता या अलौकिकता में संबंध रखता है, जो परमेश्वर से आता है। Wood, clay, and stubble, hay. It is earthly. It is of the flesh. और जो लकड़ी, मिट्टी, जो पुआल, जो घास फूस होते हैं, ये सब जो देह के होते हैं, जो शारीरिक होते हैं। Right? So whatever we do, the work we do, तो जितने काम हम जो करते हैं, make sure it is from God. कि आप यह निश्चित करें कि ये सब परमेश्वर से है। Make sure it is from the Holy Spirit. यह निश्चित करें कि ये पवित्र आत्मा से है। That work you will be rewarded for. तो उस काम के लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा। But if we do things out of the flesh, अगर हम देह के अनुसार काम करेंगे तो for that no reward. उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं। Example. उदाहरण के रूप में, Suppose I see another brother. मैं एक दूसरे भाई को देखता हूँ, He has YouTube channel. उसका एक YouTube चैनल है, I also want YouTube channel. मुझे भी YouTube चैनल चाहिए। I want two. मैं 2 चैनल बनाऊंगा। And I do it. I may be preaching all that, but I do it because I am jealous, तो मैं उसको कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं ईर्ष्या रखता हूँ, or I am in competition. या फिर मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्रतियोगिता रखता हूँ। I am doing right thing. I am preaching, मैं तो सही काम कर रहा हूँ, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, but my motivation is competition or jealousy. लेकिन जो मेरा प्रेरणा जो मुझे प्रेरित कर रहा है वह जलन से आ रहा है। The Bible says that envy, it's a work of the flesh. तो जो बाइबल बताती है कि ईर्ष्या करना या जलन करना वह शरीर का काम है। I may be doing a nice thing, मैं हो सकता है कि अच्छा काम कर रहा हूँ, but my motivation is लेकिन जो मेरा प्रेरणादायक है
jealous, वह जलन है, competition. प्रतियोगिता है। That kind of work will not get any reward. तो इस प्रकार के काम को कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? You understand it? So, the work we do जो काम हम करते हैं must be pure, वह शुद्ध होने की जरूरत है, must be from God. वह परमेश्वर से होने की जरूरत है, It must be from the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा के द्वारा होने की जरूरत है। So we have to check our heart. तो इसलिए हमारे हृदय को हमें जांच करना चाहिए। Others imagine you're working so hard, आप कल्पना कर लीजिए, करिए कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, but God is looking at our heart. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देख। Look at First Corinthians chapter 4, आइए देखिएगा पहला कोरिन्थियों अध्याय 4 and we will read verses 5 and just verse 5, and shall I read verse 6? Yeah, First Corinthians chapter 4, verse 5. पहला कोरिन्थियों चौथा अध्याय 5वां वचन। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मानव के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। आमीन। So notice what he's saying. देखिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। When the Lord comes, जब प्रभु आते हैं what will he do? वो क्या करेंगे? He will judge our work according to the motives of our hearts. तो वह हमारे कामों का न्याय करेगा जो हमारे हृदय का जो प्रेरणा था उसके अनुसार। How will he judge your work? वह आपके काम को कैसे न्याय करेगा? Not how big it was, कितना बड़ा काम था उससे नहीं, not how much money you spent. कितना खर्चा आपने किया उससे नहीं, He will judge us according to the motive of our heart. और जो हमारे हृदय की बात है उसको क्या प्रेरित कर रहा है उसके अनुसार उसको न्याय करेगा। He won't ask how many sermons you preached. वह नहीं कहेगा हमसे कि कितने संदेश तुमने प्रचार किए हैं। He'll ask you why you preached those sermons. तो वो पूछेगा कि आपने इन संदेश को क्यों प्रचार किया। Not how many sermons you preached. कितने संदेश आपने प्रचार किया वो नहीं पूछेगा, Why you preached. आपने क्यों प्रचार किया। Yes, Lord, I preached because I enjoyed all the tali baja. प्रभु जी मैंने प्रचार इसलिए किया कि जो लोग ताली बजाते थे उसको मैंने उसको बहुत आनंद उठाया उसका। So more I preached, the more they clap. तो जितना ज्यादा मैं प्रचार किया उतना ज्यादा वो ताली बजाते थे, I enjoyed it. तो मुझे बहुत अच्छा लगा। So no reward for you. तो आप लोग के लिए कोई पुरस्कार नहीं। Understand? आप समझ He रहे will हैं? judge according to the motive of our, तो हमारे मन के मतियों के अनुसार, and then each one's praise will come from God. और वह न्याय करेगा और तब जाकर एक एक व्यक्ति का प्रशंसा जो है वो परमेश्वर से आएगा। Okay. ठीक So है? that is the believer's judgment, तो वह विश्वासियों का न्याय है which will happen in heaven जो स्वर्ग में होगा, after he takes us there. और जब हमको वह ले जाएगा वहां पर। And the result is he will give us a reward according to what good, true, genuine work we have done. और वह फिर हमें वह परिणाम देगा उसके अनुसार जो हम लोगों ने काम की है उसके अनुसार। Okay, I see one question here on the chat. मैं एक प्रश्न देख रहा हूँ चैट बॉक्स में। This is about the previous thing we mentioned, तो यह पूरे पिछले बात को जिसको हम लोगों ने बताया था where उसके it बारे में। says nobody knows the time when the Lord will return. तो वहां में जहाँ पे कहता है कि जब परमेश्वर वापस आएंगे उसका समय किसी को नहीं मालूम है। So the question is, why does it say even the Son of Man? That's even Jesus will not know the time. तो प्रश्न है कि जब यह मनुष्य का पुत्र भी यानी यीशु मसीह भी नहीं जानेगा, यह क्यों कह रहा है? So we must differentiate between the human Christ and the glorified Christ. तो हमको जो अंतर है, जो मानवीय मसीह है और जो महिमा में मसीह है उसके बीच में, Right? So on the earth, when Jesus walked the earth, तो जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर चले फिरे he walked in his humanity. तो वह मानवता में चले फिरे। That means he was not omniscient, omnipotent, or omnipresent किसका- during his time on earth. तो उनके इस समय के दौरान जब वो पृथ्वी पर थे तो वह सर्वव्यापी, सर्वतंत्र और सर्वज्ञानी नहीं थे। So as
the Son of God or the Christ in his humanity, he did not know. तो एक मनुष्य के रूप में या मानवता के रूप में उनको यह मालूम नहीं था। But after his ascension, उनके स्वर्गारोहण के बाद today he is the glorified Christ. आज वह एक महिमामय मसीह है। That means he now has omnipotence, omniscience, omnipresence. तो इसका मतलब होता है कि अब वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वतत्र है He is co-equal with the Father and the Spirit. और वह पिता के साथ सहभागी और आत्मा के साथ सहयोगी है So now he knows all things. और वह बराबर है, इसलिए सब कुछ उनको मालूम है। Colossians 2 verse 3. In whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. और कोलोस्से 2:3 में जिसमें ये सारे ज्ञान और बुद्धि के जो धन्य है, अथाह धन्य है, वे छिपे हुए हैं। So now he knows all things. तब जाके वो सब कुछ जानता है। But in his humanity, he didn't know. लेकिन उसकी मानवता में वो नहीं समझ पाया। So that's how we understand that. तो यह है उसका उत्तर। All right. So going back to what will happen to believers in heaven. तो फिर वापस जाते हैं कि स्वर्ग में विश्वासियों का क्या हुआ। So everyone understood about the judgment of the believers? आप सब समझ गए जो Question. विश्वासियों का जो न्याय था उसके बारे में। Question. एक प्रश्न है। 1 Corinthians 3 verse माइक 1:5. If anyone work his bond, he will suffer loss, but he himself will be saved. Yet us. That means, suppose, we're standing before the Lord. Say, Lord, may bada come here. I did all this. And then Yeshu says, Chalo dekhenge kya ho gaya. And then he looks at all our work and everything goes. Right? So even if all our works are gone, we will still be saved. तो हमारा जो भी काम जो हम लोग अगर चला गया तो हमारा जो Even if all our works are destroyed, जो अगर हमारे सारे काम अगर नाश हो जाते हैं तो but we will still be saved. हम फिर भी बचाए जाएंगे। Okay, to be saved, you have to believe in Jesus. तो विश्वास करने के लिए या बचाए जाने के लिए आपको मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, That's यीशु all. पर विश्वास करना पड़ेगा। Right. But works is for rewards. तो हमारा जो काम है वह पुरस्कार के लिए। So that's what verse 15 means. तो इसीलिए यहाँ पर 15 वचन में कहा गया है। Question? उसमें बोला है कि बचाएंगे, पर उसमें लास्ट में लिखा है परंतु जलते जलते, लास्ट में क्या बोला? परंतु जलते जलते, ऐसा जलते। लास्ट में लिखा है। तो उसका मतलब क्या? बचाएंगे परंतु जलते जलते, उसका मीनिंग क्या है? So, परंतु जलते जलते, वो आपका प्रश्न है। so we can understand it as he will be saved in spite of this judgment through fire. This particular fire judgment is to test the nature of our work, not whether we are saved or not. तो पहला कोरिन्थियों 3:15 का अंतिम से जो जलते जलते हैं उसकी व्याख्या हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो उद्धार के कारण हमको बचाए जाएंगे, ना कि हमारे कार्य के कारण। Okay, in spite of that fire test, the person will still be saved. तो जो वहां पे जो आग है उसके बदले भी वह व्यक्ति बचाया जाएगा। Sir, as we are living in this world, Yes. so we are in competition world. So we have to give exams. We are getting first rank, second rank, or last rank. So those who are getting first rank, the last rank is really sad. He didn't get. So again, reward is coming to the heaven. So if my brother will get first rank and I'll get last rank, again it is written that there is no sadness, there is no cry in the heaven. But I will be crying. Why he got first prize? Why not I? So how we can understand this scenario? So, when we go to heaven, जब हम स्वर्ग में जाते हैं we won't have this sinful nature. तो हमारा जो पाप का स्वभाव है वो नहीं रहेगा। Here, we are comparing. यहाँ पर तो हम तुलना कर रहे हैं। Oh, he got first rank, I got last rank. कि उसको पहली पदवी मिली, मुझे दूसरी पदवी There, मिली। it won't be like that. तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। Our
the way we see things will be very different. जिस प्रकार हम चीजों को देखते हैं वह अलग होगी। Our only desire will be Jesus. तो हमारा जो एकमात्र जो इच्छा होगा वह यीशु मसीह होगा। Right? We won't have any sense of competition. Oh, his mansion is on that street. I want my mansion there. तो मुझे None of that. तो हमें यह भावना नहीं होगी, प्रतियोगिता की भावना, और हमें कि यह जो महल है इस सड़क पे, मैं चाहता हूँ कि अब यह मेरा महल इस सड़क पे बने, तो ये सब नहीं रहेगा। Yeah, our whole mind, the way we are as beings will be completely different. और जो जिस प्रकार हम हैं, हमारा पूरा मन वह मसीह के जैसे बदल जाएगा। So we will, like Jesus said, we will be like the angels in heaven. जिस प्रकार यीशु ने कहा कि स्वर्ग में हम एक स्वर्गदूत की तरह रहेंगे। So I would answer your question saying that it won't matter to us. तो हम इस प्रकार का आपका जो प्रश्न का उत्तर देंगे वह यह रहेगा कि ये हमारे लिए कोई बात नहीं है। We will celebrate everyone. हम सबको मनाएंगे। And there will be no sadness because of different people getting different rewards. और हम लोग उदास नहीं होंगे यह देख के कि अलग लोगों को अलग अलग पुरस्कार मिल रहे हैं, Which we can actually experience now. जिसको हम वास्तविकता में अब भी उसका अनुभव कर सकते हैं। If we walk in the mind of Christ, और अगर हम मसीह के मन से चलते हैं now अभी, we can be in that kind of attitude. तो उस प्रकार के आचरण में हम भी अभी रह सकते हैं। You know, like somebody has 2 cars, one person has 5 cars, one person has no car. Chalo, sab log जय मसीह। तो किसी व्यक्ति के पास 5 कार है, किसी प्रकार के 2 कार है, किसी के पास कार ही नहीं है, ठीक है, प्रेज गॉड, जय मसीह। Our attitude is like Christ even now. तो हमारा जो आचरण है वह सोचना भी है, वो भी वैसा ही है जिस समय प्रभु के जैसा है। Doesn't matter. वो कोई बात नहीं है। Right. So, और एक प्रश्न। question. Yes. सर मेरा प्रश्न है कि रैप्चर के दौरान क्या विश्वासी या पास्टर छोड़ दिए जाएंगे? While rapture, will the pastors or believers be left behind? Only let me put it like this: only those who are believers will go up in the rapture. तो वही जो विश्वासी है उस रैप्चर या उठाए जाने में उनको उठाया जाएगा। His question is, Pastors and believers, will they be also be lifted up during the rapture? will they be left behind? Is it? Yeah. So if any person is not living as, is not living the way God wants us to live, कोई व्यक्ति उस प्रकार का जीवन नहीं जी रहा है जो परमेश्वर चाहते हैं जीने के लिए, and that decision God will make. और वह निर्णय परमेश्वर बनाएंगे, There may be those who are left behind. तो हो सकता है कि वही लोग उनको छोड़ दिया जाएगा। So we look at 1 John chapter 3. Well, let's look at this verse. हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय। 1 John chapter 3 पहला यूहन्ना अध्याय 3 and verses 2 and 3. उसका 2रा और 3रा वचन। 1 John 3, 2 and 3. पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 2रा और 3रा वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Right? हालेलुया। So we have this hope. We will see him as he is. हमारे पास वो आशा है, हम उसको देखेंगे जैसा वह है। But लेकिन you have this hope, you purify yourself, अगर आपके पास ऐसी आशा है आपको, तो अपने आप को पवित्र कीजिए even as he is pure. जिस प्रकार वह पवित्र है। So we have to live in a place of readiness. तो हमको उस प्रकार के क्षेत्र में पवित्रता में रहना है। So if there are people who are thinking they are believers, but they're not really walking in relationship with Jesus, that is what God knows. He will decide. तो कोई ऐसे विश्वासी हैं जो सचमुच में जैसा परमेश्वर चाहते हैं रहने के लिए, अगर वैसा रह रहे हैं या फिर उसको परमेश्वर ही जानते हैं, वह न्याय करेगा, निर्णय करेगा।
तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 9 में लिखा है कि वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतारकर उन्हें भस्म। कहाँ से पवित्र लोग यहाँ आ गए? He is quoting a scripture, Revelation 29, chapter 20, verse 9. तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि प्रकाशित अध्याय 20 में 20 का 9 में लिखा है कि वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतारकर उन्हें भस्म कर दिया। इसमें पवित्र लोग, जब रैप्चर के दौरान सब पवित्र लोग उठा लिए गए हैं, तो इसमें कहाँ से पवित्र लोग आ गए हैं? While rapture, when the holy people were lifted up, from how where this holy people are coming in this verse? Yeah, so remember this. तो आप इसको याद रखिए। The rapture, the believers are taken into heaven. जब रैप्चर में जब विश्वासियों को स्वर्ग में उठाया जाता है, But there are millions of people still on earth. तो जो मिलियन लोग अभी भी पृथ्वी पर रहेंगे। At that time, और उस समय many will turn to Jesus. उस समय बहुत यीशु के पीछे हो लेंगे। And during the 7 years of tribulation, और ये 7 साल के महाकलेश के दौरान we will see when we come through the book of Revelation, और जब हम देखेंगे उसको, जब हम प्रकाशित वाक्य किताब में आते हैं, many people will believe in Jesus. बहुत लोग मसीह पर विश्वास करेंगे, They'll become saved. वे फिर बचाए जाएंगे। They will see everything that's happening. वे देखेंगे जो सारी चीजें हो रही हैं, They will repent. वे पश्चाताप करेंगे। And many of them will lose their lives for Jesus' sake during the tribulation. और महाकलेश के दौरान बहुत में से कई अपने जीवन को खो देंगे यीशु मसीह के लिए। And these people who die in Christ during the tribulation, और ये लोग जो महाकलेश के दौरान मारे जाएंगे, they will be raised up, or they will have their resurrection at the end of the tribulation. और वह उनको उठाया जाएगा या फिर उनका पुनरुत्थान होगा जो महाक्लेश है उसके अंत में। So they will also come into God's kingdom. और वे भी परमेश्वर के राज्य में आएंगे। But most of them will die during the tribulation because they will be killed. तो बहुत लोग उनको मारे जाएंगे उस महाक्लेश के दौरान, क्योंकि उनको मार दिया जाएगा। So in the tribulation will be very difficult. तो जो महाक्लेश है वो बहुत कठिन होगा। Yeah, you say, I want to follow Jesus, I want to believe because now I see everything happening. I want to believe in Jesus. तो आप उस समय कहेंगे कि मैं यीशु को पीछे चलना चाहता हूँ, जो हो रहा है वह सब कुछ देख पा रहा हूँ, मैं यीशु पे विश्वास करना चाहता हूँ। It's good, it's important, ये जरूरी है, अच्छा है, but it will be difficult. लेकिन यह बहुत कठिन होगा। And many will be killed for their faith in Jesus. और बहुतों को मार दिया जाएगा उनके यीशु मसीह पर विश्वास रखने के कारण। But they are righteous लेकिन वे धर्मी रहेंगे and they will be raised up और फिर उनको भी उठाया जाएगा at the end of the 7 years. और 7 साल के अंत में उसको भी उठाएगा। Understand? आप समझे? तो भाई का प्रश्न है कि 30 जो न्याय होता है हम देख पाते हैं, तो उन विश्वासियों का क्या जो आत्मघात कर लेते हैं, Believers who commit suicide. वह विश्वासी जो अपना आत्मघात कर लेते हैं। So suicide is not good. सबसे पहले आत्मघात अच्छी बात नहीं है, Don't try it. यह सही नहीं है। We don't know what will happen. पहले हम नहीं जानते कि क्या होगा। But here's the thing. लेकिन यहाँ पे एक बात है, Let's say a believer, he serves the Lord for 30-40 years. तो देखिए कि विश्वासी जो परमेश्वर की सेवा करता है 30-40 साल तक, And then something happens in his life. तो कुछ होता है उसके जीवन में, He becomes depressed वह निराश हो जाता है, and he takes his own life. वह अपना जीवन ले लेता है। People ask the question, where will he go? Will he go to heaven? Will he go to hell? तो लोग पूछते हैं यह प्रश्न को कि वह कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। There is no chapter and verse for that particular kind of death. तो उस प्रकार के मृत्यु के बारे में कोई भी अध्याय या वचन नहीं है।
But I can tell you what I think. तो मैं क्या सोचता हूँ यह बताऊंगा आपको, And you can agree with me, you can disagree with me. It's okay. We'll all go to heaven. और आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सब स्वर्ग में उठाए जाएंगे। I believe that if a person is a believer, true believer, but because of his emotional problems and so on, he takes his life, I believe he'll still go to heaven. तो मैं विश्वास करता हूँ कि अगर कोई विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी भावनात्मक कारणों के कारण, निराश होने के कारण अगर वो अपने जीवन को ले लेता है तो भी वह स्वर्ग में जाए। There's no chapter and verse, ये कोई अध्याय या वचन नहीं है इसके बारे में, but my thinking is like this. लेकिन मेरी सोच ऐसी है। Suppose there is a good believer. मान लीजिए कि एक अच्छा विश्वासी है, He gets angry with one other believer. वह एक दूसरे विश्वासी पर नाराज हो जाता है, Just he gets angry. वह गुस्सा हो जाता है। That brother said something. That brother said something. उस भाई So ने he कुछ got कहा, angry. उस भाई ने कुछ कहा, यह भाई गुस्सा हो गया, That moment trumpet sounds. और उसी समय तुरही बजती है। He doesn't have time to say, God, I'm sorry, I got angry. तो उसको बस ये समय भी नहीं है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैं गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। But according to the word of God, he's a murderer. तो लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वह एक मारने वाला है, Because in the Bible, anger, hatred is equal to murder. और बाइबल में ना गुस्सा होना ये सब तो खून करने के बराबर है, ठीक है या नहीं? है या नहीं? So he's a murderer. तो वह एक खून करने वाला हो गया। But no time to say, God, I'm sorry, I got angry. तो कोई समय नहीं है कहने के लिए कि परमेश्वर क्षमा कर दे, मुझे गुस्सा आ गया। He's a believer in Jesus. वह यीशु मसीह में विश्वासी है, But that moment he got angry, तो जिस वक्त घड़ी वह नाराज हुआ trumpet sounded. और तुरही का शब्द सुनाई दिया, He has no time to say, God, I'm sorry. उसका समय ही नहीं है कि प्रभु क्षमा कर दे मुझे। क्या हो जाएगा उसको? What will happen to him now? I believe he'll be saved. मैं विश्वास करता हूँ कि उसको बचाया जाए। Why? क्यों? Because it is about our faith in the person of Christ. तो यह हमारे विश्वास के हैं उस मसीह के व्यक्तित्व में। Right? So, on that basis, even a believer who, in his moment of weakness, takes his own life, it's not the right thing, but because of the emotional problems, these things, it happens. So that's why I believe that, God, they'll be saved because of their faith in Jesus. इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए उस व्यक्ति के, हम नहीं जानते भावनात्मक या किसी भी प्रकार के निराशाकारक अपना आत्मघात करता है तो वह Yeah. मसीह But में we don't have a chapter and verse that addresses that particular जो situation. स्वर्ग So, में जाता है। some people may have a different opinion, and that's fine. देखिए किसी और व्यक्ति का कुछ अलग इसके बारे में अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। Eh? ठीक है, Huh? जो discuss कर रहे हैं। Judas, I don't know, because as far as the Bible says, he ended up in perdition. That means he did not get saved. तो बाइबल बताती है कि वह उसका अंत हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसको बचाया गया, He did not get saved. उसको उद्धार नहीं हुआ, उसको उद्धार नहीं मिला। Right? So the Bible is clear on that. बाइबल साफ रूप से बताती है। So that's different from this situation. I asked Paul said, so Paul said that he has free will, but they use free will to give themselves. That's why he is no sin. Yeah. It's correct. सर न्याय कितने प्रकार से किया जाएगा? न्याय। How many times will face judgment? How many times? Who? कौन, किसका न्याय? सबका, जय विश्वासी हो या विश्वासी। जैसे नूह के समय में व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे समय में बाइबल है। हम नूह के समय में व्यवस्था नहीं थी, उनका किसके हिसाब से न्याय किया जाएगा? During the time of Noah was no law, but now we have Bible. So how we will be judged? He's asking how we will be judged, or when we, how many times will be judged? How many types? How many types will be judged? How many types will be judged? How many times? Types. कितने प्रकार से, right? How many types? Type 1, type 2, type 3. Type. Yeah, types of.
How many types of judgment we have in the life of life? I don't understand, huh? How many judgment is there for the people who righteousness or the unrighteous? So how many, okay, so there is one judgment. See, Hebrews 9:27. देखिए इब्रानी 9:27 में देखिए सिर्फ एक ही न्याय है। It is appointed unto man once to die, after that the judgment. और यह निश्चित है कि एक व्यक्ति मरेगा, उसके मरने के बाद उसका न्याय होगा। So there is a judgment, whether you go to heaven or hell, एक न्याय होगा अगर आप स्वर्ग में जाते हैं या नरक में जाते हैं, life or death. जीवन और मृत्यु में। If you make the decision to believe in Jesus, then that secures where you're going to go. और अगर आप यह निर्णय लेते हैं कि अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं तो यह उस बात को सुनिश्चित करता है कि आप कहाँ जाएंगे। Right? So Hebrews 9:27, there's one judgment. और इब्रानियों 9:27 एक ही न्याय है। And the last and final judgment is called the Great White Throne Judgment. और जो श्वेत सिंहासन का न्याय है वो अंतिम और दूसरा या अंतिम न्याय है। But the result of that judgment is already decided while you're here on earth. और उस न्याय का परिणाम पहले से ही निर्णय ले चुका गया है जब आप इस पृथ्वी पर हैं। Right? It's already, the decision is made here on earth. और निर्णय लिया जा चुका है जब आप इस पृथ्वी पर हैं। The Great White Throne Judgment is like the closing ceremony. और जो श्वेत बड़ा सिंहासन का जो न्याय होगा वह जैसे समाप्त की जो सभा होती है या समारोह होती है उसके जैसा होगा। Right? It's just separation of the people who are in life and death. और वह एक ऐसा बदलाव करना होगा, छांटना होगा जो लोग जीवन में हैं या मृत्यु में। But that decision was made while they were here on earth. तो वह निर्णय लिया गया था जब वे यहाँ इस पृथ्वी पर थे। You understand? So we can say there is one judgment, तो हम कह सकते हैं कि एक ही न्याय है, but there are other things that happen based on that one judgment. Are you in life or are you in death? और कोई और दूसरी चीजें होती हैं जो उस जीवन में जो आप जी रहे होते हैं कि आप जीवन में जी रहे हैं या मृत्यु में जी रहे हैं। Like all these other things we say, it's like we say believer's judgment, great white throne. Those are like ceremonies, but the real thing that's happened was when you made your decision for Christ. वे जो जैसे कि जो आपका न्याय या जो श्वेत सिंहासन का न्याय ये सब समारोह है, लेकिन वास्तविकता में आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं यहाँ उस पर निर्भर करता है आपका। Okay, we'll continue this tomorrow. और इसको कल हम लगातार इसका अध्ययन जारी रखेंगे। Let's rise to our feet, please. आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। Let's just pray together. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this day. पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। Thank you for the learning that we could have. धन्यवाद जो उन सारी शिक्षाओं के लिए जो And हम सीख पाए। Father, we pray you'll help us to understand these things. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमको मदद कीजिए कि इन सब बातों को सीख पाए। And let everything be clear in our hearts and minds. और प्रभु जी हमारे हृदय हमारे मनों में सब बातों को स्पष्ट होने दीजिए। And help us to get a good understanding of your word. और प्रभु जी आपके वचन की अच्छी समझ प्राप्त होने के लिए हमें मदद कीजिए। And help us, Lord, to share it with many others. और मदद कीजिए कि इस वचन को औरों को हम बताने पाए पिता In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. यीशु आपको आशीष करे।